Good morning, students. This is your teacher Sachin Khurana, and for class plus one microeconomics, today our new unit will be producer behavior and supply, and the chapter would be theory of supply. तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे बेटा स्टॉक का। इफ इन योर गोडाउन यू हैव 500 यूनिट्स ऑफ commodity X, then it means this is your stock. This is your stock. Out of this stock, the number of units which you are ready to sell at a particular price within a given period of time, within a given period of time. Getting my point? कहां पर? To the market. This becomes supply. तो टोटल स्टॉक में से जितना हिस्सा the producer, the firm, or the seller is willing to sell in the market at a particular price during a given period of time in the market, that is called supply. Getting my point? Now let us come on to the supply schedule. Supply schedule. Schedule हम जानते हैं tabular presentation of anything. This is the tabular presentation of supply. उसको हम क्या बोलेंगे? Supply schedule. ये हमारे पास दो टाइप्स के आते हैं. The very first is individual supply schedule and the other one is market supply schedule. आइए समझते हैं ये क्या है। जैसे हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ चुके हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड में, वैसे ही हमारे पास थ्योरी ऑफ सप्लाई में कॉन्सेप्ट्स आएंगे। तो पहला पढ़ते हैं इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। ये क्या कहता है जी? प्राइस ऑफ एक्स एंड सप्लाई ऑफ एक्स। 1 2 3 1 2 3। This is our individual supply schedule. Now here individual means I am assuming one consumer in a market. मैंने किसी भी एक कंज्यूमर को सपोज कर लिया कि मैं कंज्यूमर है मेरा ए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्लियर है जी? नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट, दैट इज द मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। अब ये क्या कहता है? नाउ आई एम एज्यूमिंग टू सप्लायर्स, टू फर्म्स और टू प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट। क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों सप्लायर्स का स्केड्यूल यहां पर बनाना भी मेरे लिए फिजिबल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? एज्यूमिंग टू सप्लायर्स इन द मार्केट। तो मैं कह रहा हूं मेरे पास है एक सप्लायर ए और एक है सप्लायर बी। वो दोनों जो हैं दे आर सेलिंग और सप्लाइंग कमोडिटी एक्स। दे आर सप्लाइंग कमोडिटी एक्स। क्लियर है जी? आइए इनका स्केड्यूल बनाते हैं। नाउ आई हैव प्राइस ऑफ एक्स 1 2 and 3. I have supply of x by A, supply of x by producer B. It is 1 2 3 supplies 2 3 and 4. Now my market supply schedule, that is market supply of x A plus B, तो क्या हो जाएगा? 1 plus 2 is equal to 3, 2 plus 3 is equal to 5, 3 plus 4 is equal to 7. So this is my market supply schedule. Clear है जी? So it means the tabular presentation of price of x and quantity of x, इसको हम बोलते हैं schedule, individual and market. Getting my point? Now we shift on to the supply curve.
we know the graphical presentation of any schedule is curve. So the graphical presentation of supply schedule is called the supply curve. क्लियर है जी? इसमें भी हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं. The very first is individual supply curve. This is based on the individual supply schedule. Getting my point? तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे, always remember on x axis and y axis. X axis we always take units of x on, this is the point of origin. On y axis we will take the price of x, right? 1 2 3, 1 2 3. See, understand my point. I have told you many a times कि मैं यहाँ पे स्केल ऑल्दो यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको यूज करना है. जितना डिस्टेंस यहाँ 0 और 1 है, उतना ही 1 और 2 में हो, उतना ही 2 और 3 में हो. जितना डिस्टेंस यहाँ 0 और 1 में है, उतना ही 1 और 2 और 3 में हो. ठीक है जी? ये डिस्टेंस इस स्केल पे हम सेम लेंगे अगर हमारे फिगर्स सेम है. क्लियर है जी? नाउ आई प्लॉट इट. 1 2 3. So I get this supply curve. Getting my point? This is my individual supply curve. Now this shows that my supply curve is upward sloping from left to right. Upward sloping from left to right. It means this is a positive slope. This is a linear curve. This is a linear curve and upward sloping, which shows a positive relationship between price of x and supply of x. It means if price of x increases, supply of x increases. If price of x decreases, supply of x decreases. Getting my point? Now let us get on to the another curve, that is market supply curve. Market supply curve. This is based on this thing. किस पे है जी? हमारे मार्केट सप्लाई स्केड्यूल के ऊपर बेस्ड है. क्लियर है? तो इसकी प्लॉटिंग कैसे होगी? सी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यूनिट्स ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स. नाउ दिस इज योर चॉइस. अगर आप सप्लाई कर्व ऑफ ए, सप्लाई कर्व ऑफ बी और मार्केट सप्लाई ऑफ एक्स बाय ए एंड बी दिखाना चाहते हैं तो ओके. अगर आप सिर्फ मार्केट सप्लाई, सिर्फ ये वाला कर्व भी दिखाते हैं, देन ऑल्सो यू विल फेच फुल मार्क्स. ठीक है जी? दिस इज ऑल्सो करेक्ट. आप इसका कॉम्बिनेशन दिखाएंगे सो दैट इज ऑल्सो गुड, वो भी प्रेफरेबल है. क्लियर है जी? रिमेंबर वन थिंग, मार्केट सप्लाई कर्व विल बी फ्लैटर देन इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. ये बात हमेशा याद रखें. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि किसी ना किसी सप्लायर की जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो दूसरे से कम होगी या दूसरे से ज्यादा होगी. किसी एक की कम होगी, किसी एक की ज्यादा होगी. सो यू नीड टू रिमेंबर that market supply curve will be flatter than any of the individual supply curves. Getting my point? Now let us understand the supply curve and its slope. Supply curve and its slope. हम क्या कहते हैं? जब हमने यहां पे सप्लाई कर्व बनाया इंडिविजुअल का, तो हमने क्या देखा? दैट वी गेट अ स्ट्रेट लाइन supply curve which is upward sloping from left to right. From left to right. इसका देखिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं हम लोग. x, y, price in rupees, units of x, point of origin. This is my sx. अब देखिए
अगर मैं यहां पर ऐसे प्लॉटिंग करता हूं तो ये है मेरा y एक्सिस, तो मैं बोलूंगा स्लोप आएगी चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। हम ये जानते हैं कि कुछ ऐसा ही सिमिलर आया था हमारे पास स्लोप ऑफ डिमांड कर्व में, लेकिन वहां पे हमने नेगेटिव साइन जो है वो प्रीफिक्स किया था, विच शोज कि वो नेगेटिव रिलेशनशिप बता रहा है। लेकिन यहां पर देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ